हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फील्ड फ्लिक्स। आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट ज्ञानेंद्र सर। सो बेसिकली आज हम सर से थोड़ी बात करेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ों की, इसके अलावा लेसन प्लान्स के लिए कि कैसे टीचर लेसन प्लान कंडक्ट करता है और कोचिंग कंडक्ट करता है। सो सर कैसे हैं आप? Thank you so much, and thank you so much to connect with you. I really enjoy my session here. And Amity University, I would say that one of the best place where we can go. Kids can explore themselves in the field of physical education and sports. So my name is Gyanendra. As you said, Gyanendra Prajapati. I run my squash centers as well as my sports academy called G Gems Sports. We work in entire Delhi NCR and other places also. So here when I come, I just saw the kids over here in Amity. I wanted to tell them and I wanted to give them my best opinion. How could you make your lesson plan successful? The most important, I told them, and when we sitting with them, I was telling them how important you should take. The first step is going to be your introduction. And if you say about the presentation, individually knowledge, all depend upon his presentation. So presentation is a knowledge of individual. How good you present yourself, that's depend upon your first lesson. So इस तरह से हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, and later on kids have learned a lot how to catch up the skills, how to make it more effective, and और कैसे बच्चे उसको अच्छे से समझ सकते हैं. थैंक यू सर। सर इसी के साथ आप छोटा सा अपना इंट्रो दे देंगे ताकि ऑडियंस को चल जाए पता, लाइक व्हाट यू आर डूइंग एंड इसके अलावा आप क्या क्या करते हैं। इज दैट पॉसिबल? Yes, why not? My name is Gyanendra Prajapati, and I run my squash academy different center. Noida, Greater Noida. We have center in Vadodara, Surat, other places in India also. At the same time, we have a company called G Gems Sports. In G Gems Sports, we deal with a lot of corporate events. We deal with a lot of sporting events in India, and at the same time, we deal with their team building activities in different places. Apart from that, we also deal with the underprivileged kids. We have one NGO called Dhairya Bharat. Dhairya Bharat Foundation, we have founded 3 years back, and now we got so many kids who are taking advantage on that. And this is the most important part of my life, which I'm really enjoying on doing that. So this is all about my introduction I wanted to give you. थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। इवन आई रियली वांट कि जो लोग स्कॉश में इंटरेस्टेड हैं, इवन जो आपसे कांटेक्ट भी कर पाए तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि स्कॉश काफ़ी पॉपुलर गेम है, नाउ डेज काफ़ी पॉपुलर है। बट लेकिन कुछ ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी इससे जागरूक नहीं है, आई कैन से। इवन काफ़ी को पता नहीं है कि हाउ टू प्ले, इवन कोचिंग सेंटर्स कहाँ पे, राइट? तो आफ्टर दिस वीडियो दे कैन कॉन्टेक्ट विद यू एंड दैट वुड बी बेटर फॉर देम, राइट? Yeah, I'll tell you about my centers also, and I would like to tell you about about this game. How, like, this is a most cardiovascular fitness sports. श्योर सर। If you play this game for 30 minutes, believe me, अगर आप 30 मिनट्स के लिए भी खेलते हो इस स्पोर्ट्स को, you can burn 600 to 700 calorie, which is not possible with any other racket sports, honestly, because here we have a 32 feet versus 21 feet of area, and you need to run a lot. The entire wall is gonna rebound your back. The more harder you will hit, more harder you will receive. So if you talk about the fitness, this is amazing, this is awesome. Most of the adults, they really like this game. Nowadays it is coming to the Olympic. In next Olympic in 2028, it is gonna be Los Angeles, where Indian squash player will go and participate. And I wish, and I'll make sure that they raise the flag of India over there, and we could have listened to the national anthem for India from this squash game also. So a lot of things happening all together. Things are doing really well, and in squash, I'm sure that they will do the miracle. स्कूल के अंदर जो एक लेसन प्लान होता है ना, और एक कोच फील्ड के ऊपर एक लेसन प्लान कंडक्ट कराता है, कोचिंग भी करता है ऑफ कोर्स, वो दोनों डिफरेंट कैसे हैं? There's a School huge और difference. college There's a से, huge हाँ, difference ground पे। between दिव्यांशु और स्कूल के लेसन प्लान में एंड कॉलेज के लेसन प्लान का। आप स्पोर्ट्स का ले रहे हो, कोचिंग पे ले रहे हो, Yes, स्कूल sir. में जो एज कैटेगरी है बहुत छोटी होती है. दे स्टार्ट विद द प्री नर्सरी, केजी, ग्रेड 1 2 3 4 5, एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे मेनली फोकस ऑन दिस एज कैटेगरी प्राइमरी लेवल पे. फिर बाद में जब वो सेकेंडरी में आते हैं, देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर स्टडी के लिए, फिर उतना उनका स्पोर्ट नहीं वो रन करते हैं. सो इनकी जब लेसन प्लान बनाते हैं छोटे बच्चों के, दैट नीड्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, दैट नीड्स टू बी वेरी रिक्रिएशनल, लेड अप,
and most of the skills they should learn from the activities only. And when you comes to the college level, Yes, sir. there are basically we do the mainly coaching lesson plan. These kids know that how to do warming up, general warm up, specific warm up, and other things. They need to work on proper coaching. What is proper coaching is that if they're learning the passing of the ball, they are aware about the ball. They should only work on their conditioning drill. चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे स्क्वॉश हो, चाहे टेनिस हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, इनके जो स्पेसिफिक जो कंडीशन गेम्स होते हैं वो उनके ड्रिल्स में आते हैं. तो कॉलेज में जाके बहुत बड़ा एरिया बन जाता है, स्कूल्स में बहुत छोटा होता है इनके लिए वो. बट फाउंडेशन हमारा स्कूल्स ही है. बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे ही स्टार्ट होता है स्कूल से, बिल्कुल, देन grassroots आफ्टर level दैट यूनिवर्सिटीज एंड ग्राउंड पे, राइट? सो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि कोचिंग के अंदर और टीचिंग के अंदर क्या डिफरेंस है? वेरी गुड क्वेश्चन. सबसे अच्छा क्वेश्चन पूरे इस पॉडकास्ट का ये रहा दिव्यांशु. बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि कोचिंग और टीचिंग में क्या डिफरेंस है. मैं एक सिंपल वर्ड बोलूंगा, व्हेन टीचिंग स्टॉप्स, कोचिंग स्टार्ट्स. If the person is a player is standing inside the ground, a teaching means we are going to just tell them in whole part कि तुम्हें करना क्या है. And when we go with the specific, like I'll give you example of simple Virat Kohli. Okay. I know he's not scoring very well in this scenario. Last 2 years he's not catching up very well. But हो सकता है in coaching में if you go and see Gautam Gambhir, his coach, he's not going to teach, he's going to coach him is specific. Like if your angle is not coming up on the ball, your job is to make sure that go and play the shot with the proper biomechanics things. So वो particular training को coach कर रहा है, वहाँ पे वो training, उस training को हम coaching बोलेंगे. And if he's telling that go and score and do these things in a big scenario, वो आपकी teaching होगी. So ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था आपका. जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था इससे पहले जब आपने आंसर किया, सॉरी, सो उसके अंदर ये था कि आपने किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के बारे में बात की है. फिलहाल आपने बायोमैकेनिक्स के बारे में बात करा है, तो सर ये क्यों जरूरी है बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी स्पोर्ट्स के अंदर भी और कोचिंग के अंदर भी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले हम इस चीजों पे वो इतना ज्यादा हम काम नहीं करते थे. बट सी अभी अगर कंपेयर करो हमारे स्पोर्ट्स साइंस, बायोमैकेनिक्स, किनेसियोलॉजी एंड अदर थिंग्स, स्पोर्ट्स साइंस from the European, we are far behind. The only reason is that we are not working on that. हमारे फुटबॉलर्स कहीं और फुटबॉलर से बहुत अच्छे हैं, but they get injured, they don't get the proper treatment because of sports science. They don't get treated by the biomechanics things. If some players are kicking the ball in a 90-degree, 45-degree angle, there are chances of injuries. बट इफ सम बायोमैकेनिक, कोई बायोमैकेनिक्स का एक्सपर्ट होगा तो वो बताएगा कि इस एंगल पे इसको इस लेवल पे इतनी इंजरीज हो रही हैं, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय नोइंग दिस फैक्ट एंड बाय रीडिंग एंड बाय हैविंग नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स ओनली. सो बायोमैकेनिक्स हेल्प अस टू improve our skills. Okay. Biomechanics help us to not get injured during the game. Biomechanics help us to rehabilitate very fast. Biomechanics play a lot of role in this current scenario. सेम थिंग इन स्पोर्ट्स इंजरीज ऑल्सो. सो हमें इस चीज़ पे बहुत काम करना है स्पोर्ट्स साइंस पे, इससे हमारे सारे स्पोर्ट्स का जो लेवल है बहुत अच्छा जाएगा. वी आर डूइंग ओनली सो वेल इन दिस क्रिकेट और नॉट अदर स्पोर्ट्स. इट इज ओनली रीजन बिहाइंड दैट. बहुत सारे लोगों को रिसर्च करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए इस चीज़ को आगे बढ़ने के लिए और अपने प्लेयर्स को आगे बढ़ाने के लिए भी. थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया. थैंक यू सो मच. आप हमारे गेस्ट बने बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे, इसलिए पॉडकास्ट भी छोटा होने वाला है, बट लेकिन कंटेंट काफ़ी क्रिस्प होगा, आप लोगों के लिए बहुत बेटर होगा. सर एक चीज़ और लास्ट पूछनी थी मुझे कि कई बार आप जैसे आपने बताया कि आपका स्कॉश की अकेडमी है, काफ़ी रन कर रहे हैं आप बिजनेस अपना काफ़ी बड़े लेवल पे, तो आपके स्टूडेंट्स भी होंगे अच्छे खासे ना. तो सर आप कुछ ऐसा उनको कोट बोलते हो जो आपका फेवरेट हो कि हाँ बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़ करते हो कि हाँ यू शुड फॉलो दिस ऑन दैट टाइम, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट? Most of the kids when they really get tired, they are sitting and saying, "Sir, no, now I'm getting pain." So I always follow this one quote: "There's no pain, no gain." Until unless you जब तक आपको दर्द नहीं होगा आप चीज़ों को लेके आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो my suggestion would be that every student that yes, pain will be there, but you should cover up on that and come forward as a champion. ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, क्योंकि मेरे कोच से सेम थोड़ा आपने जो चीज़ बताई थोड़ा मिलता जुलता है. ही वाज लाइक कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो पेन से गुजरना पड़ेगा, अब वो चाहे तुम्हारा फील्ड पे हो, जिम में हो या फिर कहीं भी स्टेशन पे हो, राइट? सो थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए, एंड थैंक यू सर रियली, आप बहुत शॉर्ट पीरियड पे हमारे गेस्ट बने
एंड एट द एंड मुझे एक चीज़ बताई थी कि सर की बहुत बड़ी अकेडमी है, ऑफकोर्स जो सर स्कॉश की अकेडमी रन करते हैं. सो मैंने दोबारा मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, आप में से कोई भी एनरोल कर सकता है एंड प्रोफेशनली स्कॉश प्लेयर बन सकता है. थोड़ा टाइम लगेगा बट लेकिन हाँ सर बेस्ट कोच है उस चीज़ के लिए. इवन नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सर के काफ़ी सेंटर्स हैं. इसके अलावा मैं इन सर का इंस्टाग्राम का लिंक और इसके अलावा लिंक्डइन का लिंक मैं प्रोफाइल पे डाल दूंगा, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो. ओ थैंक यू एंड सपोर्ट करें सर को भी एंड मुझे भी. थैंक यू. Thank you everybody.